All right. Assalamu alaikum, students. We are starting our distance learning class today, and we continue with our discussion or learning of the Python language in this. Okay. Uh, Last time we had discussed the second level of details about here's the second about the list and the string. Here are those slides which we discussed last time. We learned about few more methods regarding strings, and we learned a lot of additional things compared to our previous background about the uh, list thing. So these were two major data types. Here are these about the list. Quite a few additional features and methods compared to our first level of learning. And then moving to strings and looking at slicing, negative indexing, and concatenation, length, and quite a few methods to manipulate them in a very handy way. So we learned about it, including this format thing, which is very handy. It will help you in printing things in a more organized way. All right, our next thing which we have to discuss is another important data type, in fact, composite data type in built in Python. Composite, there are quite a few composite data types built in support in Python. So after list and string, we look at the dictionaries. As you will see when we see it in detail, they are a handy data structure or data type for building databases and managing databases, tables, records, and above all, um, when we feed inputs to our test data in deep learning, etc. So dictionary is another very important data structure which we are learning in Python. I had introduced it in level 1. We might quickly uh, review that and then build on it for the next level of features. Uh, Dictionary as the list is an ordered sequence. Its list is an ordered collection. All of them fall under the heading of sequence. All of them are sequence. Dictionary, list, uh, tuple, all of them are considered as a sequence. Tuple and list are the ordered sequence. Ordered, the elements inside them are placed in a order which you point to them by different indexing approaches. But they are ordered arrangement of elements or collection of elements, and they are that kind of sequence. Dictionary, unlike that, is an unordered sequence. इसमें एक सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स जैसे वहाँ लिस्ट में नज़र आता था कि 0 से n-1 तय करता था कि कौन सा वैल्यू किस पोजीशन पर है, ये वहाँ डिटरमिन होती थी. इसमें ऐसा कोई नहीं है, उस तरह का इंडेक्स इसमें मौजूद नहीं होता, क्लासिकल वे ऑफ इंडेक्सिंग. इसमें
की का वर्ड हम यूज करते हैं, की यूज होती है एक्चुअली टू इंडेक्स थिंग्स, ठीक है। अब की उस सेंस की ऑर्डरिंग को बाइंड नहीं करती। डिक्शनरी में ये इंपॉर्टेंट है कि की वैल्यू पेयर आपने उसमें डाला, जब आप इवन एंटर करते हैं या रिमूव करते हैं या बाद में डील करते हैं, तो देर इज नो एश्योरेंस कि आपकी वो एंट्री किस जगह होगी, फर्स्ट पोजीशन में होगी, सेकंड में होगी, थर्ड में होगी, इट कैन बी एनीवेयर, and assurance of finding it at any time will be by searching of that key. अगर आपने की ढूंढ ली तो एंट्री कहीं भी हो आपको मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू से कि मेरा ये पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जो था वो लोकेशन 10 पे था, तो आप उसको 10 के हमेशा 10 पे फाइंड करो, नहीं। वो लोकेशन 10 उसकी तय नहीं है। वो एक्चुअली की उसकी वैल्यू है जिसके जरिए से वो आपकी एंट्री फाइंड होती है। तो ये है अनऑर्डर्ड कलेक्शन बेस्ड ऑन दी पॉइंटिंग बाय दी की। और इसके अंदर जो एंट्रीज हैं जिसकी हमने बात की, दे आर पेयर्ड, दे आर ऑलवेज, कोई जैसे अरे में आपकी कोई एक वैल्यू होती है, लेट्स से इंटीजर की अरे है या मिक्स डाटा की भी अरे है, तो उसमें एक एंट्री में एक वैल्यू एंटर्ड होती है, उसमें सिर्फ वैल्यूज एंटर होती है। इसके अंदर की एंड वैल्यू ये पेयर एंटर होता है। जैसे इस डिक्शनरी में की के लिए उसने यूज किया यहाँ 1 और उसके अगेंस्ट वैल्यू डाली एल, और उसका फॉर्मेट कि यहाँ आपने कॉलन डालना है, ये करली ब्रैकेट से शुरू और एंड होना है, ये की है और ये वैल्यू है। इसमें की एक इंटीजर नंबर है और वैल्यू एक स्ट्रिंग है। कॉमा आएगा, इसका मतलब है एक, ये जो पेयर है, दिस इज वन एंट्री, ये कंप्लीट हो गई। अब ये कॉमा आया, अब दूसरी एंट्री शुरू हुई, इत्तेफाक से उसका की नंबर डजेंट हैव टू बी 1 2, उसका की नंबर 2 है, कॉलन और वैल्यू है दिस स्ट्रिंग और क्लोज्ड। यही चीज यहाँ नजर आ रही है अनदर डिक्शनरी। अब ये फर्क क्या दिखाया है कि की जैसे वहाँ था, वहाँ तो इंटीजर में की थी, ये कहता नहीं, की कैन बी इन अदर देन इंटीजर्स और ऑल्सो देयर। तो और वहाँ पर जैसे ये 1 2 इत्तेफाक से लिखा हुआ है, इवन ये इंटीजर भी अरे के इंडेक्स की तरह 1 2 या 0 1 2 नहीं होंगे। हो सकता है ये इंटीजर में पहली वैल्यू 37 हो, दूसरी वैल्यू 92 हो और तीसरी वैल्यू 5 हो यहाँ की में। तो कोई इसकी उस सेंस में की पर बाइंडिंग नहीं है कि लाइक द इंडेक्स ऑफ लिस्ट वो रहे। की में डाटा टाइप भी वेरी कर सकती है, इट डजेंट हैव टू बी इंटीजर, इट कैन बी, की कैन बी ए स्ट्रिंग, यहाँ पे Q1, यहाँ स्ट्रिंग Q2। ये भी उसने फिर जस्ट टू आइडेंटिफाई टू एंट्रीज उसने Q1 Q2 किया। इवन दिस स्ट्रिंग कैन बी एब्सोल्युटली आर्बिट्री, this string could be Aslam, this string could be Islamabad, right? So no बाइंडिंग ऑन दैट सेंस कि की में स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो, वो उससे मैच करेगा। वट एवर वैल्यू इज देयर, सर्चिंग में पॉइंट करने के लिए उस लोकेशन के लिए ये की के ज़रिए से सर्चिंग करेगा। तो यहाँ Q1 की एशले वैल्यू कॉलन, ये एक एंट्री कॉमा another key colon another value curly bracket बंद, complete डिक्शनरी। ओके, तो ये एक डिक्शनरी, उसकी सिंटैक्स, उसकी एंट्री, उसके अब अब इनके डाटा टाइप की बात कर ले। हमने कहा था कि ये की भी इधर इंटीजर थी और इधर स्ट्रिंग हो गई, और ये वैल्यूज़ में भी इस तरह की बहुत सारे डाटा टाइप्स अलाउड है। इतफाक से इसके एग्जांपल में उसने दोनों जगह स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ली है, मगर वैल्यू कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ डाटा टाइप। अब ये एक एग्जांपल है डिक्शनरी की जिसमें कर्ली ब्रैकेट बिगिन और एंड, और इसके अंदर लेट्स से 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं, और इसमें उसने वो वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स इन की एज वेल एज
इन वैल्यू शो की है। पहली एंट्री का की इंटीजर की है और वैल्यू स्ट्रिंग है, कॉमा दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री से मुराद, उसके लिए टेक्निकल वर्ड यहाँ इस्तेमाल होता है, आइटम का वर्ड इसको यूज़ करते हैं। तो ये पूरा पेयर जो है, की वैल्यू पेयर इज वन आइटम, ठीक है, कॉमा सेकेंड आइटम की इज ए स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू इज अ बूलियन, ट्रू फॉल्स। इसकी थर्ड एंट्री की इज ए स्ट्रिंग, इसने ये नंबर 3 को भी एज ए स्ट्रिंग डाला है। अभी देखें ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, मगर यहाँ नंबर एज ए इंटीजर है और यहाँ नंबर एज ए स्ट्रिंग है, ये दो अलग बातें हैं। तो इसको और इसकी वैल्यू में उसने अरे डाला है। तो वैल्यू पार्ट में it doesn't have to be a single element thing, it can have composite data types like array or maybe another dictionary, small dictionary here, and an array of string or tuple. So it can have lot of things. Not tuple, okay, tuple also. अच्छा, अब ये 4 इसमें हम देख रहे हैं कि फोर्थ एंट्री, यस मैं कह भी रहा था, ये देखिए इसमें वैल्यू में डिक्शनरी आ गई, की में स्ट्रिंग है, इसमें की में फ्लोट पॉइंट वैल्यू है और वैल्यू में भी फ्लोट पॉइंट। आप देख रहे हैं ये वैरायटी और इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू डाटा टाइप की अलाउड है। मगर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि की में पाबंदी है कि खाली इम्यूटेबल जो डाटा टाइप्स हैं सिर्फ वो हो सकते हैं, क्योंकि एनीवे आप हम आगे देखेंगे कि डिक्शनरी डज नॉट अलाउ इट्स की टू बी चेंज्ड। तो इस डिक्शनरी का ये की वाला पार्ट इम्यूटेबल होता है, हम इसको चेंज नहीं करते, हम वैल्यू वाले पार्ट को चेंज करते हैं। अगेंस्ट अ की जैसी इंडेक्स होता था उसके अगेंस्ट ही वैल्यू होती थी, तो हम वैल्यू को चेंज करते हैं, की से पॉइंट करते हैं, की को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए की के लिए खाली वो डाटा टाइप्स होंगे जो इम्यूटेबल होते हैं। उनकी मिसाल यही है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, नंबर्स आर इम्यूटेबल, ट्यूपल्स जो हमने सीखे हैं दे आर इम्यूटेबल। तो की कैन बी ओनली सच डाटा टाइप्स, जबकि वैल्यू कैन बी ऑल डाटा टाइप्स विच कैन बी चेंज्ड, नो प्रॉब्लम। ओके, अब नेचुरली जिस तरह अरे में स्ट्रिंग में हमने डाटा को एक्सेस करते थे, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, वहाँ पे वैल्यूज़ को पढ़ते थे, वहाँ वैल्यूज़ को लिखते थे, यही काम अब उसके इक्वलेंट्स डिक्शनरी में भी मुमकिन है कि एक्सेस करना पर्टिकुलर एलिमेंट्स को रीड करने के लिए, या उसमें स्टोर करना, वैल्यू को चेंज करना, मॉडिफाई करना या राइट करना, ये काम डिक्शनरी में भी हो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि वहाँ इंडेक्स और तरह से था, एक एक्सटर्नल चीज़ थी और वहाँ सिर्फ वैल्यू स्टोर होती थी। यहाँ पे इंडेक्स भी स्टोर्ड है और वैल्यू भी स्टोर्ड है। इंडेक्स का नाम की है और वैल्यू इज़ वैल्यू। सर्च करने के लिए हम की के ज़रिए सर्च करते हैं और रीड और राइट जो चीज़ होती है टू वैल्यू होती है। जैसे सॉन्ग इज़ ए की फॉर पॉइंटिंग टू द आइटम और ये उसका डाटा है। ये आप जब इस की से पॉइंट करेंगे तो ये डाटा आप रीड भी कर सकते हैं और इस लोकेशन पर रिप्लेस करने के लिए राइट भी कर सकते हैं। तो ये जैसे इसमें ये 2 एंट्रीज हैं माई डिक्शनरी में, तो आपने अगर रीड करना है या प्रिंट करना है तो आप उसका नाम लेके ये इंडेक्स डालें सॉन्ग, तो ये एक्सेस हो जाएगा, यू कैन रीड इट, यू कैन प्रिंट इट, व्हाटएवर।
अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, यही इंडेक्स डाल के इसमें वैल्यू असाइन कर दें। इसमें आपने वैल्यू रीड की थी, यहाँ इसके अंदर उस लोकेशन तो ये एस चेंज्ड जो लिखा हुआ है इसकी जगह पैराडाइज सिटी हो जाएगा। फिर अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे पैराडाइज सिटी प्रिंट होगा आफ्टर दिस। तो ये है इसका। इसमें गेट मेथड है ऑल्सो टू एक्सेस सम वैल्यू इन डिक्शनरी एज ए मेथड को यूज़ करके भी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सकता है और आप ले रीड कर सकते हैं वैल्यूज। उसमें एक ऑप्शन आपके पास डिफ़ॉल्ट का भी है कि अगर आप किसी गेट मेथड से किसी लोकेशन की वैल्यू गेट करना चाहते हैं और वहाँ अगर वैल्यू नहीं है तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट मैसेज, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहेंगे, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको रिटर्न हो जाए, उसके ज़रिए से आप कुछ भी कन्वे कर सकते हैं अबाउट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट। ये उसका फ़ायदा। अच्छा, अगर वहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं है और वो की एग्जिस्ट नहीं करती, अगर की, तो फिर नन रिटर्न किया जाएगा। नॉट स्पेसिफाइड की इज नॉट फाउंड। अगर की ना मिले और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं है उस की के अगेंस्ट, तो फिर नन जो हमारे पास एक पाइथन में चीज़ है वो आपको रिटर्न होगी इस मेथड के लिए। ये उसकी एग्जांपल्स हैं कि अब हम कहते हैं ये विदाउट डिफ़ॉल्ट वाले का मतलब ये है कि ये एक डिक्शनरी है जिसमें ये लेट्स से इत्तेफाक से एक ही एंट्री है। इट कैन हैव मैनी एंट्रीज। आप देखें, मैंने बताया था कि एट टाइम्स कोई मेथड कॉल करना हो तो यू कैन हैव ए डिक्शनरी और लिस्ट नेम्ड एंड देन यूज द नेम। हमने पीछे लिस्ट में कई दफ़ा ये किया, मगर उस टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि पाइथन अलाउज कि अगर आपकी स्मॉल लिस्ट है या स्मॉल डिक्शनरी है या है तो आप डायरेक्टली भी उसको लिख कर और उस पर मेथड कॉल कर सकते हो। यहाँ उसने एक छोटी डिक्शनरी बनाई और उस पर मेथड डॉट गेट कॉल किया, तो गेट के आगे उसने की डाली इस डिक्शनरी की और उसने तो इस गेट मेथड का रिटर्न इस नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। दूसरा केस कि आपने उसी डिक्शनरी में डॉट गेट के आगे एक की डाली कि इस की का मुझे डाटा दें, वो की इस डेटाबेस में नहीं है और देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ए डिफॉल्ट वैल्यू आल्सो, तो इसने रिटर्न कर दिया नन। ये वो केस है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या फ़ायदा है, वो ये है कि आपकी डिक्शनरी में तो नेम और विक्टर ये इसकी आइटम में ये की और ये वैल्यू है, इस पे आपने गेट किया एक और की को, जैसे वहाँ ऊपर कहा था। अच्छा, वो की इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब इसमें अगर आपने गेट के उसमें सेकंड पैरामीटर में कोई चीज़ दी हुई है, सो दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या इन अ वे उसको आप एज ए मैसेज भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपने यहाँ मैसेज डाल दिया एज ए वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि निक नेम इज़ नॉट अ की। तो इस बजाय इसके कि ये इसको नन, जैसे इस केस में तो नन कह दिया कि भाई एग्जिस्ट नहीं करती, इस केस में आपको इवन मैसेज आ गया कि ये की वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको एक एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ा। या आप इसमें कोई भी वैल्यू या मैसेज या डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक मेथड इसमें जैसे इस लिस्ट में भी था डॉट पॉप, तो डॉट पॉप का सिमिलर वो है। इस केस में इंडेक्सिंग जो है वहाँ पे आप इंडेक्स बताते थे, इस केस में इंडेक्स आपका की है तो इसमें आप की बताएंगे, ठीक है। और फिर जिस तरह वहाँ पे था कि वो पॉप आउट कर देता था वैल्यू, यानी वैल्यू को रिमूव भी करता था लिस्ट में, और आपको अगर एक्वायर करनी है तो असाइन भी कर लेते थे, आप उस वैल्यू को यूज़ कर सकते थे। रिमूव में वहाँ पे वैल्यू रिमूव हो जाती थी, मगर आपको वो यूज़ करने के लिए रिटर्न नहीं करता था।
पॉप में वहाँ पर भी ये था कि वैल्यू ना सिर्फ लिस्ट से रिमूव होगी बल्कि पॉप आउट हो जाएगी और आप उस वैल्यू को असाइन करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी पॉप के लिए यही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ सिर्फ वैल्यू निकलती थी लिस्ट से जो पॉप आउट होती थी। यहाँ पॉपिंग में यहाँ आप की देंगे और उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो की वैल्यू पेयर पूरा यानी आइटम पॉप आउट हो जाएगा। और जब आइटम पॉप आउट हो जाता है तो पॉप के केस में वो ख़त्म हो जाती है फ्रॉम दैट लिस्ट और फ्रॉम दैट डिक्शनरी। अब आप उसको अगर प्रिंट करेंगे तो यू विल हैव विदाउट दैट एंट्री और आइटम। जैसे ये था फेमस म्यूज़ियम, इसमें ये की और ये म्यूज़ियम का नाम, ये सिटी की और ये म्यूज़ियम का नाम और फिर ये सिटी एज ए की और ये म्यूज़ियम का नाम। तो ये एक आपने डिक्शनरी बनाई, उसमें आपने फंक्शन कॉल किया डॉट पॉप इस डिक्शनरी पर, यहाँ नेम डिक्शनरी ली, पूरी लिस्ट बड़ी थी, डॉट पॉप किया, एक की दी जो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है। तो इट विल पॉप आउट दिस पेयर, यू कैन असाइन इट, यहाँ पॉप हुआ, यू कैन असाइन टू एन ऑर्डर्ड पेयर। तो एथन्स और ये इसको पॉप आउट कर देगा इस लिस्ट से। अब पॉप आउट होने के बाद अब अगर आप इस लिस्ट को फिर प्रिंट करें, इस लिस्ट से ही निकल गया, ओरिजिनल लिस्ट से ही निकल गया, तो उस सॉरी ओरिजिनल डिक्शनरी से, तो उस डिक्शनरी का नाम लेके आपने पॉप किया। अब अगर उस डिक्शनरी को आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहली एंट्री है उसमें, दूसरी एंट्री है और तीसरी पॉप हो गई। डिक्शनरी में उसके कंपोनेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी बड़े एलिगेंट मेथड्स हैं। फर्ज करो आपकी ज़रूरत पड़ सकती है कि एक डिक्शनरी में तमाम कीज़ की लिस्ट आपको चाहिए, तो क्या करें? एक डिक्शनरी में तमाम वैल्यूज़ की लिस्ट चाहिए, क्या करें? और एक डिक्शनरी के तमाम आइटम्स की लिस्ट आपको चाहिए, तो क्या करें? बड़े हैंडी ये तीन, डॉट कीज़ का मेथड विद दिस, डॉट वैल्यूज़ का मेथड विद दिस ब्रैकेट, डॉट आइटम्स का मेथड विद दिस ब्रैकेट, तो वो आपको रेडीली मिल जाएंगे। ये एक डिक्शनरी है, एग्जाम्पल डिक्शनरी। ए में वन एनिमल, बी में दूसरा, सी में तीसरा और इस तरह इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप कहेंगे इस डिक्शनरी का नाम दे के डॉट कीज फंक्शन विद दिस ब्रैकेट्स मेथड कॉल हुआ, ए लिस्ट ऑफ ऑल द कीज, ये देखिए कीज वर इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लिस्ट बनाना है और लिस्ट में उनको अलहदा करने के लिए कीज को कॉमा डाला है। दूसरा डॉट वैल्यूज का फंक्शन मेथड कॉल किया, तो ऑल द वैल्यूज थिंग जो कि इस केस में भी ये स्ट्रिंग्स थे और उनको अलहदा किया और अरे में डाला, तो एक लिस्ट में डाला, तो एक लिस्ट बना दी ऑल द वैल्यूज को की। इसी तरह डॉट आइटम्स, जो मैंने कहा आइटम्स का मतलब है की वैल्यू पेयर, तो की और वैल्यू का एक पेयर बनाया, इट इज अ ट्यूपल, की और वैल्यू का एक ट्यूपल बनाया, एंड दैट इज वन एंट्री ऑफ दिस लिस्ट जो हम पहले बनाते थे। ये जैसे एक एंट्री थी, ये एक एंट्री थी, इसी तरह अब ये एक एंट्री है। ये कॉमा इस ट्यूपल के अंदर है जिसके अंदर ये आइटम का दोनों कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये सारा इस लिस्ट के लिए एक एंट्री है, तो इसलिए फिर ये कॉमा लिस्ट का, एंड सेकेंड एंट्री विच इज अ कंपोजिट एंट्री, कॉमा एंड थर्ड एंट्री, ये लिस्ट कंप्लीट है। Each element of this list is a tuple which has key, comma, value, key value pair. Okay, ये इंपॉर्टेंट चीजें डिक्शनरी की। डिक्शनरी में एक मेथड डॉट अपडेट भी है, वो क्या करता है? मर्ज करता है दो डिक्शनरीज को। आपके पास एक डिक्शनरी डिक्शनरी वन है, ये आप कहते हो डिक्शनरी वन डॉट अपडेट विद डिक्शनरी टू, मर्ज कर, आप डिक्शनरी टू को इसके साथ मर्ज कर रहे हैं टू अपडेट। अपडेट का मायने इसमें ये है
कि अगर आप मर्ज करते हैं डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2, एक्चुअली अगर उनके सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो सिंपल मर्जिंग ये है कि जी डिक्शनरी 1 के सारे एलिमेंट्स वो पहले लिख लेगा और फिर आगे कंटिन्यू करेगा, और डिक्शनरी 2 जैसे ज्वाइन या इस तरह की चीज़ हमने देखी, या कंकैटिनेट हो। लेकिन अपडेट में फिर ये भी है कि क्योंकि अगर डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 की कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनकी कीज एक है, दो इंडिपेंडेंट डिक्शनरी हो और उनमें कीज एक जैसी हो सकती है, तो फिर डिक्शनरी 2 वाला जो वैल्यू है उस की वो ओवरराइट कर देगा। डिक्शनरी 2 उस की के अगेंस्ट अगर पहली डिक्शनरी में वैल्यू थी, उसको अब इससे अपडेट हो जाएगी, इसकी की वैल्यू पेयर उस जगह चला जाएगा। मसलन ये डिक्शनरी है, इसमें दो कलर ब्लू, शेप, सर्कल, ये इसमें मौजूद थे। डिक्शनरी 2 में एक की कॉमन दे दी उन्होंने, जस्ट टू टेस्ट दैट कि कलर सेम की, इसका रेड है। हाउएवर दूसरी एंट्री इज डिफरेंट, नंबर 42 उसमें नंबर नहीं था, इसमें है, मर्ज होंगे, दोनों की एंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी। अगर ये एक एंट्री सेम ना होती तब भी इसकी तमाम एंट्रीज और उसके बाद इसकी तमाम एंट्रीज लिख देते और दैट्स इट। मतलब एक एंट्री कॉमन है तो ये वाली एंट्री उधर ओवरराइट कर देगी, विच मीन्स अगर आप कहो डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो पहली चीज कलर, आपने देखे कि ये सेकंड वन का जो रेड है उधर ब्लू था, उसके ऊपर ये रेड ओवरराइट कर दिया। दूसरी एंट्री इसी पहली डिक्शनरी की जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपने लिखी, इसमें एक ही थी, ये लिख दी। उसके बाद आप डिक्शनरी 2 पे आ गए, उसकी सारी एंट्रीज लिख दी जो ये है, ये मर्जिंग विद अपडेट। Okay. Any question for the this part? Next, we will look at the module thing in our discussion. No, sir, everything fine. Okay. Thank you. अच्छा, अब modules modules are like a next level of structure, जैसे हम करते हैं लाइब्रेरी, हमारे फाइल होती है, फिर फोल्डर्स होते हैं, फिर इस तरह हम जब प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं तो हायर लेवल पर हम उनके मॉड्यूल्स बनाते हैं, और एक मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक मॉड्यूल में देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। दिस ग्रुप विच हैज ए सेट ऑफ फंक्शंस देयर, और आप उस मॉड्यूल को अगर कॉल कर लो तो उस मॉड्यूल के फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉड्यूल में ग्रुप ऑफ फंक्शंस को भी नाम दिए जाते हैं, जिसको आप सब मॉड्यूल कह लो, यानी एक मॉड्यूल में है मल्टीपल सब मॉड्यूल एंड ईच सब मॉड्यूल विल हैव दोज मैनी फंक्शंस। तो हम इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और उसको जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो फंक्शंस के साथ आते हैं। हम क्या इंपोर्ट करें, किस लेवल तक करें, ये भी हमें वाइजली करना चाहिए। एवरीथिंग को इंपोर्ट कर लेना आपकी जो नेम स्पेस है उसको क्राउडेड कर देता है, क्लैशेस और इश्यूज आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको सिलेक्टिव जो ज़रूरत की चीज़ है उसे आप इंपोर्ट करें, ये हम यहाँ पे बताएंगे मॉड्यूल्स के केस। जैसे पहले जनरल बात कि अगर एक फाइल में आपके कुछ कंटेंट्स हैं और आप एक दूसरी फाइल में कि जो कि उसी फोल्डर में हो, दूसरी फाइल में उस पहली फाइल के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इंपोर्ट के जरिए से ये काम कर सकते हैं। ये एक फाइल है आपकी जिसमें आपने ये फंक्शन F1 फंक्शन हेलो वर्ल्ड जो भी कुछ है ये उसमें आपने डिफाइन किया, ये एक फाइल थी। अब इसी फोल्डर में एक और फाइल आई, ये फाइल 2 है आपकी। इसमें आप चाहते थे कि अपने जो और काम करें उसके दौरान आप फाइल 1 के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह हम क्लास की इनहेरिटेंस का टाइप किस चीज़ होती है, इसी तरह हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपकी दूसरी फाइल में पहली फाइल में अवेलेबल फंक्शंस आपके काम आए। ये अक्सर लाइब्रेरी और ये सारा का कॉन्सेप्ट इसी तरह काम आता है कि वो लाइब्रेरीज बना के उनको एज ए मॉड्यूल अवेलेबल कर देते हैं, और आप
एक बड़ी स्ट्रेंथ आपको पाइथन में मिलती है बाय यूजिंग ऑलरेडी बिल्ट मॉड्यूल, जिससे कोड रीयूज का बेनिफिट रहता है। और ये बड़ा एज है पाइथन का कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और इसमें आप मॉड्यूल्स इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस छोटी सी एग्जांपल में जो आपके अपने उसमें है, आपने कहा इंपोर्ट फाइल वन, या आपने उसका उस फाइल का को इंपोर्ट किया। अब उस फाइल में अवेलेबल जो भी फंक्शन है आपके लिए अवेलेबल हो गए। अब आप यहाँ पर इस फाइल टू में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये f1 डॉट फंक्शन, f1 अंडरस्कोर फंक्शन इज अवेलेबल। ओके, अच्छा, इंपोर्ट पाइथन में मौजूद करने की बहुत लाइक अदर लैंग्वेजेस भी हैं, इसमें बड़ा एक्सटेंसिवली अवेलेबिलिटी है और यूज़ है। तो तीन तरीके से आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। एक इंपोर्ट के साथ पूरे मॉड्यूल का आप नाम दे दें, उस मॉड्यूल के तमाम फंक्शन आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे। आप फिर जब यूज़ करना हो तो उस मॉड्यूल के नेम के साथ जो भी उसका एक फंक्शन है उसे यूटिलाइज करेंगे और कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो आप थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहते हैं, आप अननेसेसरी क्राउडिंग और वो नहीं करना चाहते, तो आप कहते हैं इस मॉड्यूल से आई वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट, ये आप एक पर्टिकुलर फंक्शन या सब मॉड्यूल जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ वो बता देते हैं कि इस मॉड्यूल को पूरा नहीं बल्कि उसका ये सबसेट ऑफ फंक्शंस जो है ये इंपोर्ट करूँगा मैं। जब आप वो करते हैं तो फिर आप वो फंक्शंस वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में उसने एक किया था, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस भी हैं तो आप उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से आपने बहुत सारे फंक्शन जो आपके डोमेन में वो सेट ऑफ फंक्शंस नहीं थे और आपको इस्तेमाल करने का इम्कान नहीं था, वो आपने नहीं लिए। ये थर्ड तरीका वो ये है कि आप फंक्शंस के जगह आप ये कह दें फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एवरीथिंग, ये स्टार। इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ ले आए, and you may not need all of them and you may have your namespace filled up unnecessarily। ये तीन तरीके हैं मॉड्यूल्स को। टिपिकली आप जैसे मैंने कहा ये पूरा नाम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर पाइथन एनकरेज करती है और आप सारे कोड देखोगे उसी तरह लिखते हैं कि आप उसका कोई एलियसिंग या निक नेम एलियसिंग करते हैं बाय ए शॉर्टर नेम। यानी मॉड्यूल्स के नेम अगर बड़े हैं या मॉड्यूल्स के फंक्शन के नेम बड़े हैं वो सब ब्लॉक के, तो आप उसके लिए एक शॉर्ट नेम डिफाइन करते हैं और फिर उसको अपने कोड में इस्तेमाल करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए बिग नेम। ये आपको कोड को एलिगेंसी देता है। और वो नेम भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जगहों पर बहुत कॉमन चीज़ों के हर जगह आपको एक ही नजर आएंगे। यानी इवन ये चॉइस है इसमें कि आप निक नेम खुद दे रहे हैं, एलियस कर रहे हैं, मगर बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो हर एक यूज़ कर रहा है वो निक नेम भी फिर वही यूज़ कर रहा होता है। जैसे नमपाई का है तो एनपी रवायती है, तो सारे कोड्स को एक ही लेवल पे रखने के लिए या समझने के लिए या रखने के आप उसके लिए एनपी ही यूज़ कर लेते हैं हर जगह। और ये भी एक मिसाल है दूसरी कि आपने जैसे ये है पाइथन में मैट प्लॉट लाइब्रेरी है, ये मैट्रिक्स को प्लॉट करने की लाइब्रेरी, इट्स वेरी वेल नोन लाइब्रेरी। आपको कोई भी आउटपुट लेनी है उसके ग्राफिकल तरीके से या हिस्टोग्रामिंग तरीके से आपने पेश करना है, तो ये बड़ा हैंडी और सिंपल लाइब्रेरी है। हम इसको सीखेंगे क्योंकि आपकी कोई भी साइंटिफिक डाटा की आउटपुट्स इस तरह के फॉर्मेट्स में ग्राफ श्राफ की शक्ल में होती हैं। उनकी लेबलिंग, उनके टाइटल, उनकी कलरिंग, वो सारा कुछ ये लाइब्रेरी बहुत सिंपल तरीके से हैंडल करते हैं। विल लर्न अबाउट इट। देर आर सो मैनी लाइब्रेरी। हम एक सबसेट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो सिलेक्ट करके लर्न करेंगे। इसके बाद पाइथन के बाद हम नमपाई करेंगे क्योंकि वो एक बेस बनेगी हमारी टेंसर फ्लो के लिए, तो वो करेंगे। और फिर एक ये मैट प्लॉट लिप करेंगे ताकि हमें कोई भी आउटपुट ग्राफिकल शक्ल में चाहिए हो तो हम इसको यूज़ कर सकें। ये हम आइंदा सीखेंगे। एनीवे यहाँ तो इसकी एग्जांपल खाली कॉलिंग ऑफ इंपोर्टिंग ऑफ ए मॉड्यूल की तरह। तो फ्रॉम
मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट, अब इसका ये एक सब ब्लॉक है, इसके अंदर प्लॉटिंग के लिए एक है पाई प्लॉट सेक्शन, तो हम खाली वो इसका इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, और उसको हम नाम दे रहे हैं एज पीएलटी, ये शॉर्ट पाई प्लॉट कहने के बजाय पीएलटी कह रहे हैं। अब ये हम बजाय ये पाई प्लॉट का नाम यूज करते, हम कह रहे हैं पाई प्लॉट की जगह प्लॉट, तो हम अब प्लॉट का सब सेक्शन इस्तेमाल करके उसमें से फंक्शंस यूज कर रहे हैं। देखें प्लॉट, ये जो आपका एलियस नेम था डॉट, ये आपके फंक्शन है इसके अंदर, ये इस सब मॉड्यूल में ये फंक्शन है प्लॉट, और ये आप उसके वो एक्स और वाई वैल्यू दे रहे हैं जो प्रिंट आपने ग्राफ बनाने के लिए चाहिए। दिस कैन बी अरेज, एक एक्स का अरे है, एक वाई का अरे है, और ये इसको प्लॉट कर देगा आपके ग्राफ, जस्ट दिस वन कमांड। तो ये देखिए डॉट प्लॉट आपने इस पीएलटी से किया, थ्रू आउट ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह आपने इंपोर्ट किया एक कैलेंडर के मॉड्यूल को एज सी, और फिर आपने प्रिंट किया कैलेंडर लिखने के बजाय आपने ये इस्तेमाल किया एलियस सी डॉट मंथ नेम, ये उसकी फंक्शन है, उसके आगे आपने जब वन ये अपना डाला तो उसने फिर फर्स्ट मंथ सेलेक्ट किया, और उस पर जो भी आप यहाँ प्रिंट कर रहे थे, अगर रीड करना है राइट करना है वो सारे आप यूज़ कर सकते हो। ये एक मॉड्यूल हमारा है, यानी अब मॉड्यूल और उसमें बहुत सारे फंक्शंस और उनके इस्तेमाल की एक एग्जांपल है। और एनीवे आपको अपने हर कोड में कहीं ना कहीं डेट और टाइम और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हमने एक ही एग्जांपल के तौर पर एक मॉड्यूल से फंक्शंस कॉल करना और रीड करना और राइट करने की है, जो आपको एनीवे ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इंपोर्ट किया एक मॉड्यूल जो पाइथन में अवेलेबल डेट टाइम का, इसमें डेट और टाइम के बारे में फंक्शंस अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसका नाम, यहाँ पे आपने एलियस नहीं किया, तो आपने इसका नाम यूज़ करके फंक्शंस कॉल किए डेट टाइम डॉट, ये आपने उसका फंक्शन कॉल किया है इस मॉड्यूल का डॉट डेट, ये नॉन फंक्शंस में है। इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं ये दो तरह से अलाउड हैं देना, जो ये आप जब इस लाइब्रेरी की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको एक रेफरेंस मैनुअल भी दिया हुआ है python.org में, ये पूरी रेफरेंस मैनुअल मौजूद है। तो आपके इस फंक्शन के बारे में उसने बताए हुए हैं कि दो तरीके से इस फंक्शन के पैरामीटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सी ओके पोजिशनल, कि पहली जगह आप ईयर दे दें, दूसरी जगह आप मंथ दे दें, और तीसरी जगह आप डेट दे दें, हाईएस्ट से इस ईयर में इस मंथ को इस डेट पर, ये पोजिशनल है, इस तरह दे सकते हैं। या आप कीवर्ड बेस्ड एंट्रीज डाल सकते हैं कि ईयर की वैल्यू ये है, मंथ की वैल्यू ये है, ये सब इंटीजर में उसको पॉइंट करें। 2 का मतलब फरवरी है, 1 का मतलब जनवरी था, डे 16। इसमें जाहिर है ये आपको कीवर्ड के जो बेनिफिट हैं वो रहते हैं। तो आपने इन दो तरीक़ों से आप देंगे तो इसका प्रिंट करेंगे तो आपको ये तो वेरिएबल नेम था तो ओके। इसी तरह फिर टाइम के लिए कि आप टाइम भी, ये देखिए डेट टाइम मॉड्यूल नेम डॉट टाइम, आपने फंक्शन कॉल किया, ये पोजीशनल बेस पे है आवर मिनट और सेकंड, और ये कीवर्ड बेस पे आवर्स मिनट, आवर मिनट एंड सेकंड, इन दोनों तरीके से टाइम दे सकते हैं। तो इस वेरिएबल को अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये आवर कॉलन मिनट्स कॉलन ये प्रिंट इस तरह करेगा। ये फंक्शन के अंदर प्रिंट की फॉर्मेट बिल्ट इन है। इस केस में डैशेस के साथ है, इस केस में कॉलन के साथ है। ये इस फंक्शन के अंदर है, आपने ये नहीं इस तरह बताया है इसको, आपने तो वेरिएबल दिया है जिस पर आउटपुट आई थी उसने प्रिंट किया। इसी तरह इस मॉड्यूल में डेट टाइम मॉड्यूल में फंक्शन डेट टाइम आप कॉल कर रहे हैं जिसमें डेट और टाइम दोनों के पैरामीटर्स होंगे। ये पोजीशनल केस में ये सारे डेट के पैरामीटर हैं तीनों, और आगे टाइम के पैरामीटर हैं पोजीशनल इंपॉर्टेंस। दूसरे केस में कीवर्ड बेस्ड आपने पहले डेट के और फिर टाइम के दिए।
ये जब 6 वेरिएबल देंगे, इसको जब आप इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे या वो करेंगे तो आपको आउटपुट में पहले डेट के सारे डैश के साथ तीनों इस ऑर्डर में, ईयर, मंथ एंड डे, और फिर आपको स्पेस, और फिर आपको आवर, मिनट और सेकंड विद कॉलम ये मिलेंगे। ओके, तो ये एक आपकी मॉड्यूल की एग्जांपल वैरायटी के साथ आपने देख ली। ओके, हियर इज योर हाईली डिमांडेड थिंग, जो आपको कहीं नहीं मिल रही थी, और मैं आपसे कह रहा था कि समथिंग वेरी simple, readily available, obvious. Many of you found it, used it. जिनको नहीं मिल रही थी उसके लिए मैंने आपको कह ही दिया था कि ये एक छोटी सी एडिशनल चीज़ है, आपको हम चाह रहे थे कि सीखें, लेकिन आप उसको फिक्स्ड अरे या आप अरे फिल्ड बाय आई एंड 2i और 3i कर लें. Many of you did that, performed well, but okay, here is a time for lecturing. To remind you, आप में से मैंने असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिल गए होंगे, सोल्यूशन भी आपको दे दिया गया होगा, नहीं तो आज हसीब सोल्यूशन भी डाल दिया है, मार्क्स भी डाल दिए? जी सर, ड्राइव पे जो है सोल्यूशन भी डाल दिया है असाइनमेंट का और मार्क्स भी अच्छा, अब आपके पास क्लास के आप ड्राइव। देखिएगा कि हाउ डिफिकल्ट वर थिंग्स वर और कितनी थॉरोली वो कवर्ड थी. एनी वन ऑफ यू जो उसने थोड़ी सी भी ट्रबल ली, दे हैव 100 मार्क्स. हम चाह ही रहे हैं कि आप लें. आपने बेसिक सीखा है, अभी पहला फ्यू लेक्चर्स, पहली दफ़ा लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम दिया है, उसके बार बार कोड की लाइनें वो भी आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो हम आपको कोड भी लिख के दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो. ठीक है, जो आपको कहीं रैंडम का इशू आ गया, हमने कहा ये एग्जाम्प्ट कर दो, उसके बगैर लिख दो, क्योंकि जाहिर है रैंडम वाज नॉट द मेन पर्पस वाज यूजिंग ऑफ लिस्ट एंड फॉर लूप एंड इफ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ टाइप, डाटा टाइप, वो सब आपको हम फर्स्ट टाइम में तमाम उसको रिव्यू करना चाहते थे बाय दिस एग्जांपल. तो जबकि अबाउट 50% लोगों ने तो ये रूट अपनाया कि उसे ट्राई किया और वेरी हाई मार्क्स एक्वायर किए, लेकिन 50% ऑफ यू आई सी दे डिड नॉट बॉदर टू इवन अटेम्प्ट और सबमिट, कि आपने कोशिश की, आपको कम चीज़ें आती थी और आपने सबमिट की. नहीं, दे डिड नॉट बॉदर टू इवन सबमिट द असाइनमेंट. ये एटीट्यूड आप सबको मालूम है कि हम जबकि बड़े मेहनत से सीरियसली आपको हाईली लिंक्ड सिंक्रोनाइज्ड असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, फिर आपको उनके सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स को थ्रू आउट आपसे हर लेक्चर में पूछते हैं. अगर आप कोई मसला बताते हो तो हम अपना लेक्चर छोड़ के फिर उसके सॉल्यूशन को रिपीट कर देते हैं आपके सामने. ये तो हम करते हैं, लेकिन आपने भी कुछ करना है. और आपने देखा है कि अगर आप में से कुछ लोग जिनका एटीट्यूड बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है कि वो सही टाइम पे ना असाइनमेंट कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड में वो बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नज़र आते हैं. दे हैव टाइम, दे हैव एनर्जी टू मेक ऑल द एफर्ट्स एंड कन्विंस अस कि सर उनकी, आप, मेरी मौत ज़िंदगी का सवाल है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ये हो जाएंगे, मेरे फला ये हो जाएगा. इफ़ इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ. इसके दो फायदे, एक तो आप अकुमुलेटिव अपने ग्रेड को बेहतर कर रहे हो, दूसरे इन असाइनमेंट का तो स्पेसिफिक ये मकसद है कि आप अपने आप को खुद गेज कर रहे हो कि मैं, एम आई लर्निंग, एम आई गोइंग फाइन, या मुझे अभी सीखना और पूछना चाहिए और कैच ऑन करना चाहिए. क्योंकि अगर आप पहली असाइनमेंट के कंटेंट्स को ग्रैब नहीं करना चाहोगे और नहीं करोगे तो दूसरे अगला मटेरियल आपको काबू नहीं आएगा, फिर सेकंड को मिस करोगे तो थर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को आउट ऑफ द लूप समझोगे और फिर आप फेल हो जाओगे. तो अगर हमें ये वरीज हैं कि आप फेल हो जाओगे तो आपको नुकसान है, आपके पेरेंट्स को भी नुकसान है अगर आप उसको दोबारा कोर्स को लेते हो, और उसके बाद आखिर में आपके डिले इन्वॉल्व हो जाता है, जो बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, तो आई वुड लाइक आप शुरू से ही अपने कंटेंट्स, कोर्सेज और उनमें सीरियस रहें.
और अर्न करें और पास हो। एंड में हम भी हेल्प नहीं कर सकते, अभी तो हम हेल्प हर रोज कहते हैं, हर दफा जब लेक्चर देते हैं यार कोई मसला है तो बता दो, हम आपको इवन सॉल्व कर करके दिखा देते हैं कि ये पहली लाइन यहाँ पे रेंज लिखो, यहाँ पे इन लिखो, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको। लेकिन अगर आप सबके बाद ये नहीं करोगे, आई कैन अश्योर यू, यू हैव टू अर्न योर ग्रेड। ये आपको बार बार बताया गया, यू हैव सीन इट, कि आपने अगर एक दफा में अर्न नहीं किया तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में मैनी ऑफ यू अर्नड इट। लेकिन जो लोग किसी भी अटेम्प्ट अर्न नहीं करना चाहते, वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली द ग्रेड्स। मतलब हमारी पॉकेट में ग्रेड नहीं है, ग्रेड आपके पॉकेट में है, आप जब चाहे मेहनत करके अर्न कर सकते हैं। हमारी जेब में नहीं है कि हम जब चाहे निकाल के आपके हवाले कर दें, हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में ये है कि हम आपकी खुशामद करें, आपको कन्विंस करें, आपको मोटिवेट करें, वो हम करते रहते हैं। इस कोर्सेज के बारे में मैं सबसे ज़्यादा आपके काम करने में मोटिवेशनल पार्ट बताता हूँ कि पास होने से ज़्यादा you should feel that these are the present time is a golden opportunity to learn state of the art things। आप चाहें तो नेट पे और तमाम जगहों पे इन चीज़ों के बारे में देखें कि आईओटी और डीप लर्निंग की क्या स्टैंडिंग है, उसके लर्न करने के क्या फ़ायदे हैं, और फिर आपने आपको इस एम से इन कोर्सेज को सीखने के दे विल बी ए बिग इंटरेस्टिंग लर्निंग एंड फ्यूचर में यूजफुल थिंग्स फॉर यू। मेरे ख्याल से तो वो मोटिवेशन होनी चाहिए, यू शुड एंजॉय डूइंग दिस कोर्स। हमारी तो ये ख्वाहिश है। इसके लिए हम बहुत मेहनत, ये जो लैब शेड्स हमने बनाई है ओवरनाइट, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, इसीलिए कि ये हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें कि इसकी लर्निंग थॉरो हो और आप एंजॉय करो। लेकिन आपको अपना बिट करना है, अगर नहीं करेंगे तो यू नो इट कि देन वी डोंट हेजिटेट टू डिस्ट्रीब्यूट। इवन हाफ ऑफ यू वांट टू अर्न एफ, हम हाफ ऑफ द क्लास को भी एफ दे देंगे। प्लीज गेट सीरियस। ये आपका वो जो था रैंडम बोलना। इसी तरह आपके जैसे अभी हमने ये बताया कि मॉड्यूल्स हैं, इंपोर्ट होते हैं वगैरह, तो इसमें रैंडम का भी है, आप उसको इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट रैंडम, और फिर उससे ये फंक्शंस हैं जो आप कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने बताया रैंडम आपने किया हुआ है, रैंडम डॉट, इसके अंदर सिंपली वहाँ पे रैंड था, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऑप्शन है, इंटीजर के भी हैं, दूसरे भी हैं, तो इसने यहाँ आपके इस पर्पज़ के लिए रैंड इंट इंटीजर, तो वहाँ हर लैंग्वेज के अपने वो हैं फंक्शन के नेम, इसमें ये था तो डॉट रैंड इंट, और ये वो ब्रैकेट, इट इज़ ए फंक्शन यू आर कॉलिंग फॉर जनरेटिंग ए रैंडम नंबर। अच्छा, इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, एक है रैंड इंट और एक है रैंडम डॉट चॉइस। रैंड इंट जिस तरह आपका पहले था, सी में आप कर रहे थे रैंड से, वो एक इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है, और आपको प्रोवाइड कर देगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपके रैंडमनेस कंट्रोल होती है और उसके मुताबिक आपको वो दे देगा। और आप इसमें रेंज भी दे सकते हो, लोअर एंड अपर रेंज ऑफ नंबर्स। रैंड चॉइस में आप एक डेटा स्ट्रक्चर जो आपने सीखी है वो देते हो, जैसे आप एक लिस्ट प्रोवाइड करते हो, और उस पे जब ये पैरामीटर में वो लिस्ट देकर आप जब रैंडम चॉइस कहोगे, इट विल चूज फ्रॉम दैट लिस्ट इन ए रैंडम वे। यानी फिर क्या होगा, उस लिस्ट की इंडेक्सिंग आप रैंडम नंबर से जनरेट हो रही है और उस लिस्ट में से एलिमेंट चूज कर रही है, मगर विद इन दैट लिस्ट चूज करेगी। इस केस में जो रेंज है उससे, ये रेंज बेस्ड है और ये डेटा बेस्ड है रैंडमनेस, दो इसमें चॉइसेस है आपके पास। ये एग्जांपल है कि ये पहले एग्जांपल में अगर आप इंटीजर नंबर्स बिटवीन स्टार्ट एंड एंड, ये एन इंक्लूसिव लेस देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, अगर एक नंबर जो स्टार्ट और एंड इंटीजर के दरमियान आप रैंडमली जनरेट करना चाहते हैं, तो आप ये फंक्शन रैंडम डॉट रैंड इंट स्टार्ट एंड देंगे, जो यहाँ इस्तेमाल है R1 में रैंडम डॉट रैंड इंट बिटवीन 0 and 10।
इसमें अब आपका वो मसला जो हम n-1 से और इस तरह हल करते थे, आपके दोनों नंबर इस नंबर से इस नंबर तक ये इंक्लूसिव है, ये इस वजह से इंक्लूसिव है। 0 और 10 के दरमियान आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस करिए से कर लेंगे, प्रिंट R1 से वो प्रिंट हो जाएगा। ये दूसरा केस जो मैंने आपको बताया थी, एक सीक्वेंस या लिस्ट है जिसमें ये ABCD जो भी करेक्टर्स हैं, और अब आप चाहते हो कि इसमें से रैंडमली कोई करेक्टर फिर पिक करो और उस पर कोई आप एक्टिविटी करो। एवरी टाइम आप जब इसको चॉइस करोगे तो ये एक रैंडमली एक इंडेक्स असल में जनरेट करेगा इंटरनल फंक्शन, और पॉइंटिंग इज ए रैंडम, वैल्यू हमेशा यहाँ होगी। तो इस आपको लगेगा कि आपने ये वैल्यूज को रैंडमली चूज किया है, बट इसमें कंस्ट्रेन क्या है, इसमें ये रेंज कंस्ट्रेन थी वैल्यूज की, इसमें ये लिस्ट कंस्ट्रेन है वैल्यूज की, ठीक। तो ये वो रैंडम डॉट चॉइस, इसके अंदर वो आपने लिस्ट का नाम दे दिया एज ए पैरामीटर, और आपको इस लिस्ट के नंबर रैंडमली मिलेंगे। दोनों नॉर्मल रैंडमनेस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये फ्यू थिंग्स अबाउट फाइल्स, सी में भी थी, वहाँ भी हम अक्सर आपसे पहले कहते थे कि पहले अरे में इस्तेमाल कर लो। अभी तक आपने सारे काम यहाँ देखे, आप अरे लिस्ट और उनमें ही ये रैम में आप चीज़ें बिल्ड करते हो और इस्तेमाल कर लेते हो। अक्सर कोड अल्टीमेटली एनीवे रैम में आके चलता है, मगर आप यहाँ पर अभी मेमोरी को अरे इन डाटा स्ट्रक्चर्स के लेवल पर डील कर रहे हो। लेटर ऑन जब आप कर लेते हो तो हम अक्सर कहते हैं कि यार इफ़ द डाटा इज़ अवेलेबल इन ए फाइल, तो आप उस फाइल से इसमें रीड करें और फिर आगे यही काम करें जो आप कर रहे थे। ये हमने साइबर सिक्योरिटी में भी कहा था और पीडीसी में भी कहा था कि ठीक है, पहले इनिशियल लेवल पे आप इस तरह रेज लेके कर लो, और बाद में फिर अगर आपका वो डाटा फाइल में है या बड़ी शक्ल में है या उसको आपने फाइल को भेजना है, तो फिर आप फाइल से इन आईओ भी करो। तो ये वो फाइल का आईओ है जो हर लैंग्वेज में, सी में भी है। आपने वहाँ ये वर्ड ओपन और रीड और राइट और ये सब कुछ सीखा होगा, उसी के इक्वलेंट्स इधर भी हैं, विद सम मे बी सम बेटर चॉइसेस आल्सो, लेकिन क्वाइट कॉन्सेप्चुअली सेम थिंग है कि अपने सिंटेक्स है मुख्तलिफ है, विच यू कैन अंडरस्टैंड अगर आप खुद भी पढ़ते हैं। तो हमेशा आप फाइल जैसे होता है कि यू ओपन द फाइल एंड देन रीड एंड राइट इन द फाइल, बल्कि रीड का भी है, फिर उसके अंदर वेरिएशंस है, रीड की टाइप्स हैं, राइट की टाइप्स में अपेंड भी है और राइट भी है, तो ये वेरिएशंस हैं। अदरवाइज यू ओपन ए फाइल एंड देन कैरी आउट ए एक्शन ऑफ रीडिंग और राइटिंग टू और फ्रॉम द फाइल। तो ये ओपन, आप हमेशा फाइल को ओपन करेंगे। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास में, तो आपके पास एक फाइल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जैसे आप वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को फिर यूज़ करते थे फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो आपको जैसे आपने विद, ये अब आपके कीवर्ड हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। ओपन, ये आपका मेथड है फाइल को ओपन करने का। ये नेम, फाइल नेम, ये सम फाइल डॉट टेक्स्ट, ये फाइल का नेम है, ये आपने इसके अंदर डाला सिंगल कोट में। फिर ये एज कहा, ये वो है जो आप कब कह रहे हैं फाइल ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ठीक। ये कॉलम हो गया। अब आप इस ऑब्जेक्ट से फर्दर रीड राइट वगैरह के मेथड्स कॉल कर सकते हैं। अगर जो हम आगे देखेंगे, ये अभी ऑब्जेक्ट है तो आपने कहा प्रिंट फाइल ऑब्जेक्ट, तो एस फुल फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, प्रिंट हो गया। लेकिन आप इसमें रीड और राइट के एक्टिविटीज़ फिर कर सकते हैं। ये उसके मुख्तलिफ हैं, एक जैसे रीड लाइन, ये एक सेकेंड, ओके, ये था फाइल, ओके। रीड लाइन मेथड, आपने फाइल से एक लाइन लिखनी है, तो वही विद ओपन फाइल नेम एज, ये उसके ऑब्जेक्ट का आपने नाम रख दिया स्टोरी ऑब्जेक्ट,
ये फाइल में लेट्स से स्टोरी थी, और उस स्टोरी की आप लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने कहा प्रिंट स्टोरी ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट, जैसे हम ऑब्जेक्ट वहाँ बनता था इंस्टेंशिएट जब आप करते थे, इसी तरह यहाँ तो स्टोरी ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, तो ये आपने रीड लाइन कर ली फाइल से, ये फंक्शन उसका कॉल करके प्रिंट ओनली द फर्स्ट लाइन इन दी फाइल। अच्छा, अब इसी तरह जैसे रीड था फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल, असल में ये यहाँ आप देखें तो ये रीड का जो पैरामीटर है इनफैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आर, आप वहाँ डाल भी सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर फाइल का नाम खाली देते हैं तो वो आर इस जगह खुद समझ लेता है, लेकिन फॉर अदर पर्पसेस अपेंड करना है या राइट करना है तो आपको कहना पड़ता है। तो यहाँ पर है कि विद ओपन, ये आपका फाइल नेम था, इसमें आप अपेंड करना चाहते थे इसलिए आपको ए कहना पड़ा, अगर राइट करना चाहते तो आपको डब्ल्यू कहना पड़ेगा। यहाँ पर आप आर रीड भी कह सकते हो, मगर रीड बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, तो ये एक था जो हमने पीछे आर नहीं लिखा। तो अपेंड एज, ये आपने अपना नाम रखा ऑब्जेक्ट का शॉप, और आपने इस ऑब्जेक्ट से पे अब राइट किया, क्योंकि टाइम अपेंड के लिए आपने इसको ओपन किया था, तो अब जो राइट है इट विल अपेंड एट द एंड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, तो आप अगर राइट के आगे जो कहोगे वो अपेंड हो जाएगा आपकी फाइल के एग्जिस्टिंग कंटेंट के एंड पे, ये अपेंड है। लेकिन आप अगर आप अपेंड की जगह राइट लिखोगे तो अगर वो फाइल में पहले कुछ कंटेंट्स हैं तो वो फ्रेश राइट करेगा उसमें न्यू, तो जहां आपने एग्जिस्टिंग फाइल में ऐड करना है डाटा तो आप अपेंड, यू मस्ट से अपेंड, अदरवाइज राइट आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें नए सिरे से डाटा लिख देगा। ये राइट का है। ये अगर ओपन आपने नाम दिया, यहाँ आपने डब्ल्यू कहा और फिर ये कहा डायरी, अब जब आप कहोगे इस डायरी में डायरी डॉट राइट, तो ये अब जो भी कुछ पिछले कंटेंट से वो ख़त्म हो जाएंगे और अब फ्रेश उसमें ये जो कुछ आप कहोगे उस पर लिखा जाएगा। तो ये राइट का है। यहाँ देखिए ये राइट के लिए आपको ये वर्ड, पीछे आपने ए इस्तेमाल किया था, इसमें आर कर भी सकते हैं या आर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है सेकंड आर्गुमेंट। ये एग्जांपल्स हैं इसकी फ्रॉम दिस के, ये आपने एक ओपन की फाइल नेम था एज, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस फाइल ऑब्जेक्ट से आपने रीड लाइंस कॉल करके इधर डाटा डाला इस वेरिएबल में और उसे प्रिंट किया, तो ये प्रिंट हो गया। ये जब आपने रीड लाइंस कह के और इसको वो किया तो ये फाइल जो थी जो एक वो कंटिन्यूस थी वो अब मल्टीपल लाइंस की शक्ल में हो गई, यानी एक फाइल की पूरा जो था अब वो एज ए लाइन, ये देखिए पहली चीज लाइन कॉमा, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो ये अब ये लाइंस की शक्ल में इसकी ये फाइल है और ये लाइंस की शक्ल में इसकी शेप हो गई। अब आप अगर चाहें इस फाइल डाटा को तो अब आप लाइन बाय लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने एक फॉर लूप डाला, ये लाइन एक्चुअली फंक्शनल लाइन नहीं है, यहाँ एक्स भी होता है जैसे हम पहले हमेशा थे, फॉर एक्स इन फाइल डाटा, ये फाइल डाटा जो अब लाइंस की शक्ल में है उसको उस लिस्ट में, इट हैज़ बिकम ए लिस्ट, आप देख रहे हैं अब ये लिस्ट है जिसमें कॉमा है और हर लाइन उसमें अलग है। तो अब आप अगर लाइन बाय लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एक्स कहेंगे और लूप चलेगा, हर दफ़ा एक लाइन प्रिंट होगी, ये इस तरह। अच्छा, अब ओपन एंड रीड, टेक्स्ट फाइल डॉट रीड, ये है कि आपने ये खोली फॉर रीड, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आर दे सकते थे, आपने नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट उसने रीड ले लिया, टेक्स्ट फाइल के ऑब्जेक्ट बन गया
इसको आपने टेक्स्ट फाइल के ऑब्जेक्ट में रीड कहा, तो अब ये फाइल रीड हो जाएगी इन टेक्स्ट डाटा, इसको आप प्रिंट कर सकते हो। ये सारा जो कुछ उस फाइल में है पूरा रीड हो गया। ये लाइन बाय लाइन वाला बात नहीं है। अच्छा, ये भी ओके। दैट टेक्स केयर ऑफ अवर लेवल 2 थिंग्स में। अभी लेवल 2 में हमने क्लास को किया था लेवल 1 में काफ़ी डिटेल से, लेकिन अब लेवल 2 में भी हम क्लास को रिवाइज करेंगे जैसे हमने और चीज़ों को रिवाइज किया है। इसमें मेरे पास ये लिस्ट का भी है। हमने क्योंकि लिस्ट को एक बड़ी रीजनेबल उस पर कर दिया है, आई विल कीप इट हेयर, बट आई विल फर्स्ट डिस्कस द क्लास थिंग, क्योंकि वो आपकी अभी हमने उसको एक और साइकिल उसका करना ज़रूरी है। अगर टाइम हुआ तो हम इस लिस्ट को गो थ्रू भी आपके साथ कर लेंगे, अदरवाइज ये आपके कंटेंट्स में मौजूद होगा। देर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्ट, हमने अभी की हैं रिसेंटली, उसी को और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसके साथ लिखा हुआ भी है कि ये एग्जाम्पल क्या है। आई थिंक यू शुड गो थ्रू देम योर सेल्फ और यू कैन सी कि यू कैन अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। ये असल में आपको, जो हम हर जब भी कोई प्रॉब्लम करते हैं तो हम कहते हैं ना यार सर को एग्जाम्पल करा दें, तो ये हम आपको बार बार एग्जाम्पल, लैंग्वेज में तो ये बहुत ही यूजफुल है। ये बार बार आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उन्हें देख के समझ के देखो कि कैन यू लुक एट इट एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड देम। ये आपका टास्क है, तो ये इसमें मैं रहने देता हूँ और आप इसको एक दफ़ा और देखो कि लिस्ट की और एग्जाम्पल्स भी आ गई। एनीवे, मैं इसको फिलहाल हम रिमूव टू दी क्लासेस थिंग, क्योंकि उसका हमने एक दफ़ा किया है। एक और एनहांसमेंट वाले पार्ट को भी पहले कर लेते हैं, अगर टाइम हुआ तो हम लिस्ट को भी देख लेंगे। जैसे पहले ही था कि जो सारा मैंने वो उसको तो इसकी थ्योरी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दी थी इवन लेवल 1 में, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट ना हो क्लास क्या है, इस फ्रेमवर्क और टेम्पलेट जिसके अंदर डेटा और उस पर ऑपरेट करने वाले मेथड्स एक इंटीग्रेटेड शक्ल में है, और ये आप इस टेम्पलेट की एक कॉपी अपना एज ए ऑब्जेक्ट, जो कि इंस्टेंशिएशन ऑफ क्लास कहलाता है, आप करते हैं, और फिर उस अपने इंस्टेंट पर क्लास के फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो आप उसके अलावा क्लास से सब क्लासेस बना सकते हैं। सब क्लासेस में इनहेरिट हो जाता है पिछला क्लास की तमाम चीज़ें, उस इनहेरिटेड सब क्लास में आप ऐड कर सकते हैं अपने फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स। ये इनहेरिटेंस है। और उस सब क्लास में एक ही नेम से, जब हम बहुत जगह देख चुके, सेम नेम जो मेन क्लास में था, उसको अगर आपने सब क्लास में उसी नाम से आपको एक फंक्शन की ज़रूरत है, जैसे हम प्लस साइन को देख रहे हैं जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है, कभी स्ट्रिंग में कभी उसमें, तो फिर आप उसी नाम का अगर डिफरेंट नेम का करेंगे तो यू आर एडिंग टू दैट। आप वो तो सब क्लास का मकसद है कि पिछली चीज़ें इनहेरिट करो और नई बनाओ, लेकिन अगर आप उसी नेम का वहाँ डालेंगे तो ये ओवरराइड कर देगा मेन क्लास के जिससे आप इनहेरिट कर रहे थे चीज़ें, उसके फंक्शन को। तो ये फंक्शन ओवरराइड जो आप बहुत जगह इस्तेमाल कर, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सब क्लासिंग, ओवरराइड, ये हमने खूब डिटेल से कॉन्सेप्चुअली थियोरेटिकल सीखे, और उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी। Now we will look at few more examples into it. Names are written in camel case. In Python, class names are written in camel case, यानी वही फर्स्ट कैपिटल टाइटल, एंड ऑब्जेक्ट नेम्स आर रिटन इन लोअर केस। ये बाइंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट करता है। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो जनरली लोग करते हैं, और आप अपने कोड में एक यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए यू मे फॉलो दीज गुड प्रैक्टिसेस, ठीक। तो ये कैमल केस में आप क्लास का नेम दें, और ऑब्जेक्ट नेम्स जो हैं वो लोअर केस में लिखें विद अंडरस्कोर। मॉड्यूल्स दैट कंटेन द क्लासेस should still be
नेम्ड इन द लोअर केस विद द अंडरस्कोर। ये नेमिंग कन्वेंशन है क्लास के लिए। तो अब दोबारा हम वो वाली बातें जो हमने इनिशियलाइजेशन सीखी थी, एट्रीब्यूट सीखे थे, डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन सीखा था, उसको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। क्रिएटिंग एंड यूजिंग ए क्लास, यहाँ उसकी एग्जांपल है कि ये कार क्लास आप एक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने कहा वही तरीका, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम। अच्छा, यहाँ इसके ये ब्रैकेट आपने डाल दी क्लास के लिए, और कॉलन, ये हमेशा एक इसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग है। मेक ए हैबिट, ये कंपलसरी नहीं है, बट इट्स और कंसिडर इट ऑलमोस्ट कंपलसरी फॉर कीपिंग योर कोड रीडेबल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर एनीबॉडी। तो ये और अक्सर इसको, ये डॉक स्ट्रिंग को आप 3 कोड्स वाला लिखते हैं। तो यहाँ इसने वो डाला है, ए सिंपल अटेम्प्ट टू मॉडल ए कार। ये इसका कमेंट है, यानी ये स्ट्रिंग है। इसके अंदर जैसे हमने बताया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा क्लास में कंस्ट्रक्टर देना होता है, दैट इज़ फॉर इनिशियलाइजिंग ऑफ थिंग्स इन द क्लास। जब व्हेन यू रन दैट, उसको एज ए ऑब्जेक्ट रन करेंगे तो ये वो इनिशियलाइजेशन जो शुरू में हो जाएंगी, और उसके बाद आप अपने मेथड्स और वो इस्तेमाल करेंगे। ये इनिशियलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा होंगी। तो वो ये है, आप डेफ, मैंने बताया था डबल अंडरस्कोर वाली एक क्लास ऑफ थिंग्स है, मेथड्स है, वो उसमें इनिट उसमें आता है कि डेफिनेशन, ये एक फंक्शन है जिसके इधर भी डबल अंडरस्कोर है, इधर भी डबल, मेक श्योर कि ये डबल अंडरस्कोर है। मैनी ऑफ यू, जब हमने वो होस्ट और डिवाइस का कहा था और बताया था, तो मैनी ऑफ यू यूज सिंगल अंडरस्कोर एंड लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम इन दैट, ये डबल अंडरस्कोर है। क्लास के अंदर जो डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उनमें हमेशा ये सेल्फ आइडेंटिफाई करता है कि क्लास के लेवल पर ये फंक्शन डिफाइन हो, ये आपको नजर आएगा पैरामीटर, इट इज ओनली सेइंग दैट। अब इसके अंदर ये 3 पैरामीटर्स हैं, मेक, ये कार का आप क्लास में आए थे, मेक, मॉडल और ईयर। ये वो पैरामीटर, इनिस्ट का मतलब है ये आपको, ये पैरामीटर जैसे फंक्शन कॉल करते वक्त आपको पैरामीटर्स देने होते हैं। तो अब इस क्लास के वक्त आपको इनिशियलाइजेशन में जो पैरामीटर्स देने वो ये हैं, ये इनिट में जो लिखे हैं वो ये पैरामीटर्स हैं। तो यू कैन, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू विल फीड पैरामीटर्स हियर ऑफ योर चॉइस। तो इस क्लास से इन पैरामीटर पे बेस करके आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये वो पैरामीटर्स जो इनिशियलाइजेशन के वक्त आप दोगे। ये क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहा है इस कार के एट्रीब्यूट्स के वो पैरामीटर्स ले रहा है मेक, और इस क्लास में यूज के लिए उसको सेल्फ डॉट मेक में डाल रहा है। दूसरा मॉडल सेल्फ डॉट मॉडल में डाल रहा है। ईयर, ओके, सेल्फ डॉट ईयर में डाला, ये इनिशियलाइजेशन हो गई। अच्छा, इसके ये जो पैरामीटर्स जो इसमें थे इनिट में, ये उनकी इनिशियलाइजेशन हो गई। लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव सम अदर देन कि ये तो पैरामीटर्स के तौर पे फीड होंगे जब आप इसको इनिशियलाइजेशन करोगे। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में आप कुछ और चीज़ों को भी इनिशियलाइज करने की नीड आपकी है तो वो भी अलाउड है। यानी ये खाली इन पैरामीटर्स के नहीं है। आमतौर पे ये नज़र आते हैं आपको, लेकिन यहाँ दिखा दिया अब हमने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कि अब आप, और मसलन आपने फ्यूल कैपेसिटी और फ्यूल के लेवल को इन गैलन्स के लिए भी आप चाहते थे कि कुछ वेरिएबल, जैसे लोकल वेरिएबल डिफाइन करते, इस तरह आप एट्रीब्यूट्स ये इनिशलाइज करना चाहते थे। तो ये अब नए हैं, ये आप इन पैरामीटर्स में नहीं है जो इसको जो इंस्टेंशिएट करते हुए चाहिए थे, ये उसके अलावा है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपने सेल्फ डॉट फ्यूल कैपेसिटी, इसको 15 की वैल्यू दी, और सेल्फ डॉट फ्यूल लेवल इसको 0 पे इनिशलाइज किया। तो ये भी आप कर सकते हैं।
अब ये आपके इस क्लास के वो हैं फंक्शंस जो इस क्लास में आप डाल रहे हैं। ये फिल टैंक, क्योंकि ये इसका है सेल्फ, ये डाल दिया क्लास के अंदर का, ये फिल टैंक वो है। तो ये इसका डॉक स्ट्रिंग है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है। और इसका कोड ये है, क्या मैंने कहा, सेल्फ डॉट फ्यूल लेवल जो है वो सेल्फ डॉट फ्यूल कैपेसिटी। आपने इसको इस फंक्शन में फिल टैंक करना था, तो आपने कहा अच्छा मैं ये जो वैल्यू है फ्यूल लेवल वाला जो पहले, इसको मैं फुल कैपेसिटी पे कर दूं। तो यहाँ पे ये फुल कैपेसिटी की आपने एक इनिशियलाइजेशन की हुई थी, इसको असाइन कर दिया, तो आपका फ्यूल लेवल जो है वो फुल फुल हो गया। ये कोड है इससे। और प्रिंट किया फ्यूल टैंक इज फुल। चलिए, ये एक दूसरा ड्राइव सेल्फ इसी का है स्ट्रिंग। उसके बाद आपने कहा प्रिंट द कार इज मूविंग, ये ड्राइव हो गई। अच्छा, क्रिएट, अच्छा ये कंटिन्यू है, क्रिएट एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब आपको आपने क्लास का देख लिया कि क्लास में क्या है, टेम्पलेट में क्या है। अब आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमेशा इंस्टेंशिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट में आप अपना काम करेंगे। तो आपने ये कार के क्लास को इन पैरामीटर्स पे, वो जो 3 पैरामीटर वहाँ थे आपके, जो कि मेक, मॉडल और ईयर, यानी ये पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, तो आपने यहाँ मेक, ऑडी, मॉडल A4 और ये ईयर 2016 डाल के इस क्लास की इंस्टेंस बनाया, जिसका नाम आपने रखा माई कार। ये हो, अब आप एक्सेस कर रहे हैं एट्रीब्यूट वैल्यू। अब उसमें अब आप चाहें, अब आपने अपना ये इंस्टेंस बना लिया, अब आप वो वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। आप कहेंगे माई कार का डॉट में एट्रीब्यूट को, ये अब एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी क्लास, यहाँ चले गए एट्रीब्यूट अंदर, यहाँ आ गए, ये एट्रीब्यूट्स बन गए आपके। तो अब आप इस इन एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह फंक्शन कॉल करते हैं इस तरह एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने कहा प्रिंट माई कार का मेक, जाहिर माई कार का मेक ये है डॉट मेक, तो ये प्रिंट हो जाएगा। माई कार डॉट मॉडल ये प्रिंट हो जाएगा, माई कार डॉट ईयर ये प्रिंट हो जाएगा। ये आपने अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस में जो एट्रीब्यूट्स थे उनको आप एक्सेस करके रीड, राइट, प्रिंट जो भी चाहें कर सकते हैं, वो आपने किया। इसी तरह आप अपने ऑब्जेक्ट इंस्टेंस में मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपने एट्रीब्यूट को कॉल किया, यहाँ आपने मेथड्स को कॉल किया। तो यहाँ पर मेथड्स था एक फिल टैंक, अभी हमने देखा था एक ड्राइव। तो आपने अपने इंस्टेंस में डॉट उस मेथड को कॉल किया, अपने इंस्टेंस में डॉट ड्राइव को कॉल किया, तो ये मेथड रन हो जाएंगे। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, जैसे मैंने बताया क्लास एक टेम्पलेट है जिससे आप बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो यू कैन मेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो आपने एक माई कार तो ये बनाया था, आपने इसी से एक और बनाया माई ओल्ड कार, तो वही कार क्लास, उसमें जब आपने ये पैरामीटर्स डाले तो ये आपके ओल्ड कार के पैरामीटर, इट्स अनदर इंस्टेंस, दिस अनदर कार। यही फायदा है क्लास को ऑब्जेक्ट्स के जरिए से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लिखने का। एक और आपके पास है माई ट्रक, उसको आपने इसी क्लास से कहा कार, और टोयोटा और टकोमा और 2010। आप देख रहे हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस। अच्छा, अब आपने एट्रीब्यूट को मॉडिफाई अगर डायरेक्टली करना है तो वो भी कर सकते हैं कि माई न्यू कार, आपने उस कार से वो बनाया इंस्टेंस, और उसके अंदर जो फ्यूल लेवल था, जो भी कुछ करंटली फ्यूल लेवल एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, उसको आपने चेंज करके 5 कर दिया। तो दिस इज, यू कैन मॉडिफाई द एट्रीब्यूट इन योर ऑब्जेक्ट। ये एट्रीब्यूट आपने एक्चुअली क्लास के अंदर चेंज नहीं किए, या आपके ऑब्जेक्ट में जो उसकी वैल्यू है उसको आपने चेंज कर दिया। तो एट्रीब्यूट चेंज करना आपके पास अलाउड है जनरली। अब क्लास वाले कहते हैं कि यार आप इवन एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए एक मेथड डालें और वहां से करें ताकि एट्रीब्यूट चेंज कंट्रोल तरीके से हो, बट इट इज अलाउड।
तो हमने ये बता दिया कि एट्रीब्यूट चेंज हो सकता है। राइटिंग ए मेथड टू अपडेट एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू, यानी एट्रीब्यूट की ये वैल्यू जैसे मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि यार ये बेहतर है डायरेक्ट मत चेंज करो, कोई मेथड से करो, तो यहाँ वो मेथड यही काम मेथड से कर रहा है कि उसने फ्यूल लेवल, सेल्फ, न्यू लेवल और ये स्ट्रिंग, और उसने कहा इफ न्यू लेवल इज लेस देन फ्यूल सेल्फ फ्यूल कैपेसिटी, तो फिर आप इसको लेवल को न्यू लेवल पर ले जाओ, न्यू लेवल असाइन कर दो फ्यूल लेवल को, और एल्स प्रिंट द टैंक कैन नॉट होल्ड दैट मच, कि अब आप मज़ीद फिल नहीं कर सकते। तो आप लेवल इंक्रीज करना के लिए ये काम भी कर सकते हैं, और एक उस लेवल के एट्रीब्यूट को डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं और एक मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें आप ये पैरामीटर देंगे न्यू लेवल। तो आपने एक फंक्शन भी बना दिया, मेथड टू इंक्रीमेंट एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू, अगेन एट्रीब्यूट की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आप कहते हैं मैं मेथड से करूंगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका प्रेफरेबल चॉइस होता है, ऑल्दो दिस इज अलाउड, मगर ये भी कर सकते हैं। तो फिर एक और आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू इंक्रीज करनी थी, तो आपने वो ये पैरामीटर में अमाउंट दिया, ये ऐड फ्यूल के लिए अमाउंट दिया, उसने कहा कि अगर फ्यूल लेवल में ये अमाउंट ऐड करने से टोटल कैपेसिटी से कम रहता है तो फिर इसको ऐड कर दो, तो ये फ्यूल लेवल अपग्रेड हो गया बाय दिस अमाउंट, और ये अब एडेड फ्यूल आपने प्रिंट किया। अदरवाइज आप कहोगे कि नहीं ये तो इससे बाहर निकल रहा है, इतना फ्यूल मैं ऐड करूंगा तो इट विल गो बियॉन्ड द कैपेसिटी, तो आपने कहा टैंक वॉन्ट होल्ड दैट मच, ये कर दिया। तो ये देखें ये हाउ यू राइट। इनहेरिटेंस की बात में हमने ये भी बताया कि क्लास की इनहेरिटेंस में आप एक चाइल्ड क्लास बना लेते हो, जैसे कि ये क्लास इलेक्ट्रिक क्लास कार, आपने अब ये आप इनहेरिटेंस वाला काम कर रहे हो और एक आप चाइल्ड क्लास बना रहे हो जो इनहेरिट करेगी कार की वो, तो आपने कहा क्लास ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास, इस पेरेंट क्लास से ये चाइल्ड क्लास आपने बनाई। अब इसके अंदर एक तो ये आपके सेल्फ मेक, अब इस चाइल्ड क्लास में भी ये मेक, मॉडल, ईयर, ये वाले इट दे विल बी इनिशियलाइज्ड एज द इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि ये वहाँ से इनिशियलाइज की जो चीज़ है वो आ गई, और उसको आपने अगर उसी का इस्तेमाल करने हैं जो उसने दिया हुआ था, या इस क्लास के लिए ये पैरामीटर थे, अगर इनको आप कहते हो कि मैं उसी तरह इस्तेमाल करूं जैसे कि उसने किए थे, तो आप सिंपली ये कह दोगे सुपर क्लास, मैंने पहले भी बताया था, डॉट इनिट मेक मॉडल, यानी मेक मॉडल ईयर का जो मैंने असाइनमेंट या बिहेवियर सुपर क्लास में किया है वही मैं यहाँ करूँगा अपने इसके इनिट में, इसके कंस्ट्रक्टर में मैं वही तरीका इख्तियार करूँगा जो उधर था। तो ये अब आपने वो कोड एक तरह से यहाँ पर ले लिया। तो अब आपने फिर एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू दिस क्लास, ये चाइल्ड क्लास, तो आपने कहा ये आपके कमेंट है, अच्छा ये तो आपने उधर से ये कह के सुपर कंस्ट्रक्टर उसका बोरो कर लिया सुपर क्लास का, यहाँ वरना आप अपना कंस्ट्रक्टर भी बना सकते थे, ठीक, दोनों ऑप्शन थे, आपने ये कहा, यानी जो उस कंस्ट्रक्टर में चीजें थी वो तो एज इट इज आपने ली। अब आपको इस सब क्लास में अपने कोई एट्रीब्यूट या फंक्शंस डालने हैं तो आप सब क्लास में डाल सकते हो। तो इसने यहाँ पर बैटरी साइज का एट्रीब्यूट डाला, फिर इसने ये वाला चार्ज लेवल, बैटरी के चार्ज, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक कार है, पहली जो कार उसने थी वो उसने एक जेनरिक ली थी, उसमें स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं थी। अब आपने जब ये ऑब्जेक्ट बनाई इलेक्ट्रिक कार के लिए तो वो वाली चीज़ें तो मेक, मॉडल, ईयर और बहुत सी चीज़ें, फ्यूल टैंक और उसका साइज और ये वो वही रहे, मगर अब कोई नए एट्रीब्यूट और नए फंक्शंस आपको सब क्लास में चाहिए थे, तो अब वो आप ऐड कर रहे हो उसमें। ये है फंक्शन को वहाँ से इनहेरिट कर ली चीज़ें सारी और उसके अलावा आपको जो चाहिए वो कर रहे हैं। तो आपने कहा अब इसमें सेल्फ डॉट बैटरी साइज 70,
सेल्फ डॉट चार्ज लेवल 0, यानी बैटरी है इसमें जिसकी कैपेसिटी 70 की है और प्रेजेंटली उसकी वैल्यू 0 है, ये आपने इसमें मामला ऐड किया। अब आपने इसके अंदर ये डिफाइन किया चार्ज के बाद को इसका एक फंक्शन आपने चाइल्ड क्लास में चार्ज का बनाया, ये उसका कमेंट है। ये आपने कहा सेल्फ चार्ज लेवल 100। अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है तो ये फंक्शन कॉल किया गया है। इसमें एक्चुअली तो कोई एक्टिविटी होगी, उसको उसने शॉर्ट में कहा कि जी ओके 100 चार्ज लेवल हो गया, फुल हो गई बैटरी का चार्ज करने की एक्टिविटी, तो व्हीकल इज फुल्ली चार्ज। ये एक इसने नई फंक्शन डिफाइन की। अब चाइल्ड मेथड एंड पेरेंट मेथड को यूज आप दोनों को कर सकते हो। आपने अगर कहा ये देखें माय, अब अपनी चाइल्ड क्लास को, वो क्लास थी, अब उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपने एक इंस्टेंस बनाया माय इलेक्ट्रिक कार, ये इंस्टेंस है आपकी चाइल्ड क्लास का। आपने कहा इलेक्ट्रिक कार और उसके आगे ये पैरामीटर्स दिए, ये 3 पैरामीटर्स दिए, ये हमने कहा था वही 3 है। और आपने अब इलेक्ट्रिक कार में वो पैरामीटर्स दे के एक इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंस बनाया, यानी चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस बनाया। और अब आपके पास यहाँ पर इस चाइल्ड क्लास में कुछ एडिशनल चीज़ें भी थी, इसलिए आपने यहाँ पे ये कॉल किया इस इंस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक कार के इंस्टेंस पे चार्ज का मेथड कॉल किया। तो वो चार्ज मेथड रन होगा आपके चाइल्ड क्लास में। इलेक्ट्रिक कार में ड्राइव का किया तो ड्राइव का मेथड रन होगा। तो दीज आर द न्यू मेथड जो आपके चाइल्ड क्लास में थे और आपने उसका इंस्टेंस बनाया और उन्हें यूज़ किया। इसका इंस्टेंस आपको अलग बनाना होगा इसका, अगर ये मेथड इस्तेमाल करने थे। ओवरराइडिंग पेरेंट मेथड, ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि ओवरराइड आप कर सकते हैं। मसलन क्लास इलेक्ट्रिक कार कार, ये वही क्लास है, उसके बारे में एक स्निपेट है। इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपने फिल टैंक किया था। अब इलेक्ट्रिक कार में उसने कहा मुझे फिल टैंक का मेथड का नाम तो वो रहे, मगर मैं उस तरह फिल टैंक नहीं करूँगा, मेरा फिल टैंक इज़ डिफरेंट, या मेरे केस में तो फिल टैंक एप्लीकेबल नहीं है। अब आप यहाँ डेफ करोगे फिल टैंक। अब यहाँ पर फिल टैंक का फंक्शन विल डू ए डिफरेंट थिंग, डिस्प्ले एन एरर मैसेज, ये तो कमेंट है, प्रिंट दिस कार हैज नो फ्यूल टैंक। तो अब अगर किसी ने सब क्लास में इसको कॉल करेगा तो ये वो काम नहीं करेगा कि वो फिल कर दे टैंक को, बल्कि ये मैसेज दे देगा कि भाई ये इसमें तो फिल टैंक नहीं है। अब नाम फंक्शन का वही है बट इट हैज बीन ओवर रिटन। सब क्लास में हम ओवरराइड असल में ओवर रिटन नहीं ओवरराइड कर देते हैं फंक्शन को, ये वो है। इंस्टेंसेस एज एट्रीब्यूट्स, यानी बाज दफ़ा आप क्लास बैटरी क्लास एक आपने बनाई, एक और अब इलेक्ट्रिक के लिए एक और क्लास बनाई और उसके इंस्टेंस को एज ए एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बैटरी के बारे में आपने चीज़ें की, इंस्टेंशिएट किया और उसमें वो डाले रेंज वगैरह फंक्शंस डाले, और ये इलेक्ट्रिक कार के ये आपका पुराना वो है। अब इस फंक्शन में आपने इसको एज इंस्टेंस इस्तेमाल कर लिया, ये जो बैटरी क्लास थी इसको एट्रीब्यूट के इंस्टेंस के तौर पे यूटिलाइज कर लिया, एक और क्लास बनाई और उसको इसके अंदर एज ए इंस्टेंस इस्तेमाल किया। तो आप एक और क्लास को एज ए एट्रीब्यूट इंस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसकी है। और फिर उसको इस्तेमाल आगे यूज़ किया, कॉल किया इलेक्ट्रिक कॉर में उस इंस्टेंस को। ओके, यू कैन इंपोर्ट क्लासेस, जो अभी हमने मॉड्यूल में देखा था, ये अब इसी तरह क्लास के जो इंपोर्ट करने का है वो ये तरीका मौजूद है। स्टोरिंग क्लासेस इन ए फाइल, ये कार डॉट फाइल क्लास है। तो आपने क्लास ये अब रिप्रेजेंट गैस एंड इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक, ये वाला जो आपका है। तो इसके अंदर क्लास कार ये हो गया, क्लास बैटरी ये हो गया, क्लास इलेक्ट्रिक कार ये हो गई, तीनों क्लास से आपने कॉल। फिर उन्हें ये आपने लिखी इस फाइल में, ये लिखी ये फाइल है मे बी कार डॉट पाई।
इसके अंदर आपने ये क्लासेस लिखी जो अभी हमने बात की थी, डिफरेंट क्लासेस। अब आप इंपोर्ट इंडिविजुअल क्लासेस फ्रॉम ए मॉड्यूल, मॉड्यूल वही है कि माई कार्स डॉट पाई, तो फ्रॉम कार इंपोर्ट, जो अभी हम इंपोर्ट देख रहे थे मॉड्यूल में, वो ये था फ्रॉम कार, ये मॉड्यूल इंपोर्ट दिस कार, जो उसका सब मॉड्यूल है, ये देखिए ये मॉड्यूल में सारे थे, उसमें से आपने लेट से कार वाले को इंपोर्ट किया, और ये भी किया, दो किए, इंपोर्ट कार एंड इलेक्ट्रिक कार, आपने तीसरा नहीं किया, बैटरी नहीं किया। और फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह रहे हैं एक इंस्टेंस बनाया आप माई बीटल फ्रॉम कार, ये देखिए कार को पैरामीटर्स दे लिए, और आपने माई बीटल में फिल टैंक और ड्राइव किए। और एक और आपने इंस्टेंस बनाया माई टेस्ला का, जो इसके से वो था इलेक्ट्रिक कार, और उसके साथ ये पैरामीटर थे, और आपने फिर माई टेस्ला के अंदर जो चीज़ें थी जैसे चार्ज करना, ड्राइव करना, ये बीटल नॉन इलेक्ट्रिक थी तो इसने ये वाले उसको यूज़ किया फंक्शन को, और इससे काम लिया, इसके इंस्टेंस को बना के काम लिया, और इसके इंस्टेंस को करके आपने किया। तो आपके मेन मॉड्यूल में ये सब मॉड्यूल्स तो थे, आपने कॉल किए और इनको इस्तेमाल किया। आप एंटायर मॉड्यूल भी कॉल कर सकते थे कि आपके इंपोर्ट कार में ये सारे तीनों थे, उसके अंदर जो आपने कार का बनाया था उसमें तीनों थे, एक और भी था बैटरी, तो आप सारे को भी इंपोर्ट कर सकते हो खाली बाय सेइंग इंपोर्ट कार। ये स्मॉल सी से है कार, ये बिग सी से है वो जो आपका क्लास है, ठीक है, ये स्मॉल सी, ये सारे को कर लिया। इसमें आपने बीटल का इंस्टेंस उस कार से बना लिया, कार डॉट कार, बिग सी से कार, दूसरा कार डॉट, फिर आपको ये कहना पड़ेगा क्योंकि आपने सारे इंपोर्ट कर लिए हैं और उनके नाम अभी नहीं है, तो आपने कार में डॉट कार, कार में डॉट इलेक्ट्रिक कार करके यही वाले काम आप कर सकते हैं। इंपोर्टिंग ऑल क्लासेस फ्रॉम ए मॉड्यूल, ये वो था कि आपने कहा फ्रॉम कार इंपोर्ट ऑल, इसका मतलब वो तीनों अब आ गए सारे, तो फिर आपने माई बीटल कार वाले से इस्तेमाल कर लिया, ओके, और सारे आ गए, और उनमें से आपने यहाँ एक का इस्तेमाल दिखा दिया, नाउ यू कैन यूज ऑल ऑफ देम, ये आपने सारे वो इस्तेमाल कर लिए, सबको कर सकते हैं, और इसमें से लेकिन जैसे मैंने कहा डोंट डू दिस, रिकग्नाइज इट व्हेन यू सी इट, तो वो बेहतर होता है, वरना सारे आ जाते हैं और फिर नेम स्पेस आपकी क्लटर्ड हो जाती है। ओके, वी आर डन with our second level of revision of thing। इसके लिए मैंने आपको ये असाइनमेंट है जो आप क्योंकि हमने असाइनमेंट्स इसमें यही तय किया था कि आपको वो देंगे जिनको आप पहले से जानते हो, तो अहमद शाह may have little more things to his interest, ये असाइनमेंट है, ये अपलोड कर देंगे। ये वही हैं, एक तो 4 लेवल थ्रेशहोल्ड और 4 लेवल हिस्टोग्रामिंग। असल में थ्रेशहोल्ड जब आप करें उसी इनपुट से आप हिस्टोग्रामिंग इनको कंबाइन करके भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, ये एक मैट्रिक्स दे दी है और वो घेरे लेवल वही इसका है 0 से 255, तो एक काम आपने थ्रेशहोल्ड हिस्टोग्रामिंग करना है, और एक आपने 1D कन्वोल्यूशन अभी किया है, 2D कन्वोल्यूशन करनी है, मास्क बनाना है। इन सब में आपने रैंडम नंबर, मास्क में भी और मैट्रिसेस में भी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और आपने काम करना है। दूसरा जो है दैट इज सिंपली सॉल्विंग 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, यानी एक्स वाई जेड के साथ ए एक्स बी वाई सी जेड एन इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, इनमें भी ए बी सी जो है ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये भी कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड, ऐसी 3 इक्वेशंस होंगी एक्स वाई जेड के साथ। और फिर ऐसा जो आप हमने देखा था कि 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो उसका तरीका मैट्रिसेस के जरिए से ये है, ए एक्स इक्वल टू बी, लास्ट लाइन जो है वो बी होती है, ये एक्स में ये एक्स वाई जेड है, इसका वेक्टर होता है, और ये ए बी सी के 3 3 by 3 की मैट्रिक्स होती है, वो ये ए, ये हमने पहले किए हुए हैं लॉट ऑफ टाइम। ये मैट्रिक्स यूज करके आपने इसे सॉल्व करना है। पहले आपने स्टेप बाय स्टेप शो करना है कि बाय हैंड कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आर इन्वॉल्व। ये इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालोगे, ट्रांसपोज लोगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे,
क्वाइट अ बिट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अहमद शाह। ठीक, तो उसको जब कैलकुलेट पहले कर लोगे, इनकी वैल्यूज आपने रैंडमली जनरेट की हैं, या आपने ख्याल रखना है कि सिंगुलर होनी चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट, अगर रैंडम जनरेशन से डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो आपको वैल्यू एक चेंज करो ताकि डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ओनली देन कैलकुलेशन इज पॉसिबल, क्योंकि 1 ओवर डिटर्मिनेंट यूज होता है। तो आप ये करके पहले मैन्युअली कैलकुलेट करोगे, हर स्टेप की वैल्यू दिखाओगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, और हर स्टेप पे वो चेक करते जाओगे कि यार मेरे पहले स्टेप पे ये था टैली, दूसरा, तीसरा। पाइथन पर फोर्स आपको वो मौका देती है, इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है तो आप हर एक्शन के आंसर वहीं पर देख सकते हैं और आगे चल सकते हैं। जो हम पहले फोर्स करते थे आपको कि यार ये करो, अब वो लैंग्वेज ही आपको फोर्स कर देगी और हो जाएगी। It's a, this will cover our whatever we wanted to learn to reasonable depth in Python, everything. ये असाइनमेंट करके जो आप मंडे को सबमिट करोगे, यू आर सही कंप्लीट। है। ओके, सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर ये क्वेश्चन 2 जो आपने दिया हुआ है, हाँ, इसमें ये कौन सा वाला है, मतलब कि इक्वेशन दी होगी हमें कोई एक? तीन इक्वेशन इस तरह की, ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू बी, ऐसी तीन इक्वेशंस आप बनाओगे। इनमें ए हाँ बी जी। सी और डी आप लेस देन 6 के नंबरों से रैंडमली जनरेट करके फिल करोगे, ऐसी तीन इक्वेशंस बनाओगे। सही है, और ठीक हो आपको गया। एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तीन एफ आई सर, ठीक हो गया। तीन मल्टी वेरिएबल इक्वेशंस हैं, तीन अननोन है, तो आप उनको जी, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सही है। सॉल्व करना सही है। मैट्रिक्स मेथड से करोगे, जिसमें ये ए बी सी वाला 3 by 3 का अरे बन जाएगा। एक्स की जगह ये एक्स वाई जेड होंगे, ये वेक्टर होगा एक्स वाई जेड का, यहाँ 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा कोएफिशिएंट्स का, और यहाँ ये जो राइट साइड की चीजें हैं उसका वेक्टर होगा, एक ये वेक्टर होगा, एक ये वेक्टर होगा वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड, और एक ये 3 by 3 मैट्रिक्स होगी। इसको सॉल्व करने के लिए इधर आपको एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स इंटू बी करना है। तो आपने ए इनवर्स मैट्रिक्स और बी की मल्टीप्लीकेशन करके एक्स वाई जेड आपको मिलेंगे। ठीक तो हो गया। आपको एक्चुअल काम क्या है, इंटरेस्टिंग ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है। सही, मैट्रिक का साइज कितना रखना है हमने? ए और बी और सी का? मैंने बताया कि ये 3 एलिमेंट्स हैं और ऐसी जी। 3 इक्वेशंस हैं। तो 3 by 3, ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी हाँ डी जी, एफ हाँ जी। जी एच आई, 3 by 3 per force है। इफ देर आर 3 equations and each equation has 3 terms, it will be a 3 by 3 matrix of such a b c terms जो आपने randomly जनरेट की होंगी। जी। ओके, ओके सर। और चलिए ऑल द बेस्ट, ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर। ओके।